Yes, we are live now. Shall I start? Yes, please. Yes. Good afternoon, everyone present here. I, Navni Rawat, pleased to welcome you all for this fifth session of Physical Education Foundation of India Live 2.0. Thank you for being with us today. I have the privilege of being a moderator for this session. Before starting today's session, on behalf of PEFI, I would like to welcome you all. Friends, your suggestions, feedbacks is indeed very valuable for us. So keep sharing your views, suggestions, and feedback with us so that we can improve. Today, we are pleased to have Dr. Kavita with us as an expert. We welcome you, ma'am. Dr. Kavita is an assistant director of physical education and sports at University Sports Board, Banaras Hindu University, Banaras, Uttar Pradesh. Also, she is holding a charge of Asia's largest residential university's swimming pool since 2015, managing and administrating all the activities of two pools. She has produced many national and international swimmers and medalists. She has presented more than 20 papers at national and international level. If I on telling, the session would be, ended with her, laurels, what she has contributed to the field. So I would like to next welcome our we are next guest. It is Mr. Dr. R. Sambhav with us. Sir, we are very glad to have you with us. Sambhav, sir, we welcome you, sir. Now, I would like to welcome Kavita ma'am to share uh, the topic with us. Kavita ma'am, the screen is Okay. yours now. Okay, Nandini ma'am, thank you very much for giving me this wonderful introduction. And thank you very much. Uh, Tarun sir, क्या मैं audible हूँ? So please kindly thumbs up me. Yes, ma'am, you are audible now. Okay, thank you. Yes. So, I, Dr. Kavita Verma, on behalf of University Sports Board, Banaras Hindu University, on the eve of this Guru Purnima, I welcome you one and all. First of all, I want to give my heartiest thanks to Team PEFI, those who are really working very hard and providing such a wonderful and exhilarating session throughout the lockdown. This PEFI session 2.0 is really very much interesting, and all the PEFI team has put their effort for bringing this session to all the audience, to all the viewers, to all the learners. So I thanks to Piyush Jain sir, the National General Secretary, Professor A.K. Uppal sir, Vice President PEFI, and Dr. C.S. Thomas sir to providing me this opportunity to interact in front of you people. Thank you very much, sir. And I also want to give my heartiest thanks to Sharma, Nandini ma'am. Of course, you people are doing really great job and giving your time schedules to everyone. This is really in this busy schedule, giving the time, it's really very wonderful. And no doubt, I heartily welcome to Dr. Sambhav sir, Dean, Coimbatore Institute, and he is also the Vice President of PEFI Tamil Nadu chapter. Sir, I welcome you again. So, come on. Now let's go to the today's introduction session. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो मैंने टॉपिक चूज किया है, that is scientific aspects or science of aqua yoga. SOYA, 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 a way to अंतर जो आपकी आत्मनिर्भरता के लिए मैंने ये टॉपिक चूज करा है. तो चलिए हम सेशन हमारा शुरू करते हैं.
here is my topic, science of aqua yoga, update to Atmanirbharta. Once again, I welcome you all, those who are joining in Facebook Live now. I am Dr. Kavita Verma, Assistant Director, University Sports Board, Banaras Hindu University. Welcome you all again. So all my dear viewers, all my friends, see, before going to be start, I am showing you two pictures. If you can see these two pictures, there are two beautiful women, those who are smiling with their motivational smile and taking the presidential award. तो यहाँ से मेरा ये पहला क्वेश्चन है, क्या आप इन दो ब्यूटीफुल विमेन्स को जानते हैं? Obviously, they are from the sports fraternity background. तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स पे ये बता सकते हैं कि ये दो जो पहली पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 who they are taking the presidential award from our President Ramnath Kovind ji and Dr. APJ Abdul Kalam. चलिए, जब तक कि आप अपना आंसर अपने चैट बॉक्स में देते हैं, तब तक मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन और रखती हूँ कि मेरी कुछ क्वेरीज हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय फॉर्मल सेशन, मेरी कुछ क्वेरीज हैं कि आप में से कितनों ने इंडियन सिनेमा में कोई इंडियन स्विमर या वाटर रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कोई मूवी, कोई पिक्चर, कोई सीरियल आपने देखा हो? कितनों ने देखा और कितने देखे हैं? And my second query is, how many television advertisement of any Indian swimmer have you seen? कितनों ने आप देखते होंगे? जैसे हम देखते हैं हमारे बहुत महान खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी है, सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा है. इनकी कोई ना कोई टीवी में एड्स आती रहती हैं हर एक दूसरे मिनट में. हम जब भी टेलीविजन ऑन करते हैं या सोशल मीडिया में, we can see them everywhere. But anybody have seen कि आपने इनकी कोई एडवर्टीजमेंट देखी है? My third query is कि इंडिया में हम कितने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की स्विम सीरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं? कितने प्रकार की सीरीज इंडिया में होती हैं? Also, we are organizing the swimming competition at university level, at school level, at open level. Swimming Federation of India is also organizing such a very wonderful program, such a wonderful competitions in today's era. But although how many have these national or international swim series are organizing in this India? So you can answer me this your queries in the chat box Facebook Live. Meanwhile, मैं फिर ये पिक्चर जब तक आपको शो कर रही हूँ, जो ने लेट ज्वाइन किया है वो ये दोनों पिक्चर्स देख सकते हैं. और मेरा यही क्वेश्चन है कि ये दो कौन ऐसी फीमेल एथलीट हैं जो कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड ले रही हैं, जो कि ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स ले रहे हैं. ओके, अभी मुझे एक जस्ट अभी मॉर्निंग में एक्चुअली में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मॉर्निंग में एक स्टोरी देख रहे थे और एक स्टोरी मुझे एकदम से अभी याद आ गई. मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ. एक खरगोश था जो जंगल में रहता था, अपने मित्रों और बंधुओं के साथ रहता था, जिसपे उसको बहुत विश्वास था और वो सोचता था कि कभी भी मुसीबत होगी तो वो उनसे हेल्प मांगेगा. एक दिन क्या होता है अचानक कि कुछ कुत्ते, शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं. तो वो अपने मित्र बंधुओं के पास दौड़ते दौड़ते भागते भागते जाता है और सबसे पहले उसको गाय मिलती है और वो गाय से कहता है कि गाय माता, तुम तो बहुत दयालु हो और तुमको दया की मूर्ति कहा जाता है, तुम कृपया मुझे इन कुत्तों से बचाओ. तो वो गाय कहती है कि नहीं, अभी मेरा शाम का टाइम हो रहा है और मुझे घर जाना है, मेरा मालिक इंतजार कर रहा होगा. और इस तरह से वो चली जाती है. वो खरगोश फिर परेशान होता है, भागता भागता जाता है और उसको रास्ते में फिर घोड़ा मिलता है. तो वो घोड़े से कहता है कि घोड़ा, तुम तो इतने ऊंचे हो, मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो और मुझे इन कुत्तों से बचाओ. तो वो घोड़ा कहता है कि मैं तो जो है बैठना ही भूल गया हूँ, मैं बैठूं कैसे और तुम मेरी पीठ पे बैठोगे कैसे? इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बैठा सकता. वो खरगोश फिर परेशान होता है और भागते भागते आगे जाता है. जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको गधा मिलता है. तो जैसे ही वो गधा मिलता है तो गधा से कहता है कि तुम तो दुलत्ती मारने में उस्ताद हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम इन कुत्तों भेड़ियों से मेरे को बचाओगे? तो वो कहता है, घोड़ा कहता है कि नहीं, मेरा मालिक इंतजार कर रहा है और उसने बहुत सारा सामान मेरी पीठ पे लादना है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कभी किसी दिन और हेल्प करूंगा. और ऐसे कहके वो
गधा जो है आगे चला जाता है। पर क्या होता है कि जब वो आगे जाता है तो उसको एक बकरी मिलती है और बकरी से भी वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करता है, कहता है कि मेरी हेल्प करिए। पर वो बकरी कहती है मैं तो खुद एक नन्ही सी जान हूँ और मैं खुद इन कुत्तों के जाल में फंस जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करती हूँ और मुझे क्षमा करो। और इस तरह से वो बकरी भी जाके छूट जाती है। तो अंत में जाके वो खरगोश सोचता है कि मैं जिन पे इतना विश्वास करता था और मैं सोचता था कि ये मेरी सहायता करेंगे, पर किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, अतः मुझे अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। और वो भागते भागते जाता है और झाड़ियों के पीछे जाके छुप के अपनी उस दिन जान बचा लेता है। तो इस स्टोरी का एक सिंपल सा एक ये है कि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए और ये आत्मनिर्भरता का गुण को हमें डेवलप करना चाहिए। तो आज का जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने लाई हूँ उसका यही उद्देश्य है कि मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे डाटा, ऐसी बातों को रख सकूं जो शायद आपकी जिंदगी में, आपके खासकर जो स्विमिंग के लोग हैं उनको, मुझे पता है कि इस पैंडेमिक टाइम में वो बहुत अधिक प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उनके साथ उनका रोजगार चला गया, उनकी ब्रेड एंड बटर नहीं है और उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फॉर देयर सर्वाइवल। तो आपकी इस सर्वाइवल के लिए आपका आत्मनिर्भरता होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आजकल इन दिनों मोदी जी के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत की ओर। वैसे तो दोस्तों ये जो आत्मनिर्भरता है या सेल्फ रिलायंस है, ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये तो हमारे पुराणों से, हमारी संस्कृति और सभ्यता में चला आ रहा है। आपने अभी इस लॉकडाउन में देखा होगा, रामायण में सबसे अच्छा उदाहरण जब वो सीता जी के दोनों पुत्र लव और कुश गाना गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, तो उसमें उन्होंने कितना सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि कैसे सीता माता जो खुद एक रानी थी, जो खुद एक राजकुमारी थी, फिर महारानी बनी अयोध्या की, और फिर भी वो कैसे अकेले सारा काम करके उनने दोनों बच्चों की अपब्रिंगिंग करी, कैसे उनको कितना कठोर परिश्रम के साथ उनको स्वावलंबी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। तो दोस्तों जितनी भी मेरी ऑडियंस है, मेरी एक छोटी सी पहल है आप सभी को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए, उसके कुछ झलकी दिखाने के लिए। पर इसको शुरू करने के पहले मैं आपसे ये भी कहूंगी कि दिस इज माय लर्निंग पीरियड और कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन। तो अब मैं आपको आंसर बताती हूँ, कई लोगों ने इसमें आंसर दिया है। सबसे पहले जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो ब्यूटीफुल स्माइल के साथ है, पिक्चर नंबर 1, ये है डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, जो कि रामनाथ कोविंद जी से नारी शक्ति का अवार्ड ले रही हैं। ये हमारे स्विमिंग से जुड़ी हुई, स्विमिंग फैटर्निटी की लीजेंड है, लीजेंडरी मैम है, और शी इज सच अ वंडरफुल वुमेन हु इज अचीविंग दिस नारी शक्ति अवार्ड फ्रॉम रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने, उनको ये अवार्ड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लास्ट ईयर 8 मार्च 2019 को दिया गया है। उनका, यदि आप उनके जीवन के बारे में जानेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों, कितनी ही मुश्किलों का सामना करते हुए और वो इस मुकाम पे पहुंची है। She is now also the director of Rotary Club of Delhi region। वो साथ ही साथ वो समाज सेवा का भी काम कर रही हो और दूसरों को कैसे आत्मनिर्भर बना जाए, कैसे स्वावलंबी बना जाए, उसकी भी वो सीख दे रही है। मैडम के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मैडम she has brought so many laurels for India at national and international level। एशियन लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे she has won the gold medal, bronze medals in her event। और उन्होंने सबसे अच्छा जो नाम कमाया है वो है ओपन वाटर स्विमिंग में, इंग्लिश चैनल में। शी हैज अटेम्प्टेड द इंग्लिश चैनल एंड ऑल्सो उनका 2018 में उन्होंने 3 जो है चैनल्स को पार किया है, जिसमें कि समोआ अप्लोमा स्ट्रेट है, जिसको उन्होंने 11 आवर कंटिन्यू उन्होंने उस चैनल में स्विमिंग करी है। स्विमिंग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस फॉर कश्मीर, जिसमें कि उन्होंने डल लेक में स्विमिंग किया है 2 घंटे। आप डल लेक का पानी तो समझ सकते हैं कितना उसका टेम्परेचर, इट वाज 13 डिग्री एटमॉस्फेयर वाज देयर। एंड लेक ऑफ कॉन्स्टेंट जर्मनी में उन्होंने 28 जुलाई 2018 को, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन those who have completed this Lake Constance Germany। तो she is Madam Pahuja
and she is also working as an associate professor in Lady Shri Ram College, Delhi, very renowned college in the field of physical education also. And picture number 2, now you can see, she is बुला चौधरी. इनका नाम तो मेरे ख्याल से हर जो स्विमिंग से जुड़ा एक बच्चा है वो जानता है कि बुला चौधरी मैम क्या है. जब हम बचपन में थे, हम बचपन से छोटे से जब स्विमिंग करते थे, हम हमेशा एक नाम हमेशा रिकॉर्ड में देखते, तब इतनी हमें समझ नहीं थी, हम शायद 4 या 5th क्लास में होंगे, और हमेशा एक नाम रिकॉर्ड में आता था बटरफ्लाई में, बुला चौधरी, बुला चौधरी. ये मैडम, इनका रिकॉर्ड जो कि 21 साल तक बटरफ्लाई में चलता रहा और वो टूटा नहीं था. तो बुला चौधरी मैम की एक ऐसी उदाहरण है नारी शक्ति का, जिनका जन्म हुगली जो है वेस्ट बंगाल में हुआ था 1970 में, और इन्होंने भी अपना जो जीवन है बहुत ही, इनका मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी, इनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो जब पता पड़ा कि मैडम जो है कि मैडम ने स्विमिंग कैसे सीखा. एक्चुअली में जो इनके फादर थे, एक बार नदी के किनारे पर वो खुद डूबने लगे, तो फिर उनको लगा कि नहीं, अब मैं जब नेक्स्ट टाइम से मेरे जो बच्चे होंगे, मुझे उनने स्विमिंग सीखी, और जो बच्चे होंगे मैं उन्हें भी स्विमिंग सिखाऊंगा. तो इस तरह से उन्होंने बुला चौधरी मैम को 2 साल की उम्र से उनको स्विमिंग सिखाया, उनको तैरना सिखाया, और उसके बाद उनको एक जो लोकल कोच हैं उनने उसको ले लिया. एंड शी वाज आल्सो वेरी मच affectionated with the swimming. वहां उनकी परिस्थितियां नहीं थी, जहां कॉस्ट्यूम का मतलब नहीं पता था, जहां ये नहीं पता कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्या है, स्विमिंग गॉगल्स क्या होते हैं. और उस 2 साल की उम्र से जब उन्होंने करा, और उन्होंने 9 ईयर की एज में नेशनल लेवल पर 6 की 6 इवेंट पे उन्होंने गोल्ड मेडल को अचीव किया. उन्होंने बटरफ्लाई और दूसरे इंडिविजुअल रिले और इंडिविजुअल मिडले रिले में, मिडले इवेंट में भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया, और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए. साथ ही साथ मैडम, ये मैडम है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स की, शी इज द फर्स्ट लेडी हु हैव क्रॉस द 7 सी. इनको द क्वीन ऑफ 7 सी भी कहा जाता है. तो शी इज बुला चौधरी मैडम, शी इज अर्जुन अवॉर्डी, पद्मश्री अवॉर्डी, एंड शी इज ऑल्सो तेंजिंग Norgay Adventure Lifetime Achievement Awards, which she is receiving from APJ Abdul Kalam. So, my dear friends, so AAP is no doubt still it is a male dominating world. So, where the survival of female or especially in sports, में अपनी एक मुकाम को हासिल करना और उसको पाना कितना मुश्किल काम है, आप खुद समझ सकते हैं. मैं अपना खुद का एक एग्जांपल दूं कि मैं खुद एक छोटे से एक शहर, बहुत छोटे से टाउन होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां की मां नर्मदा की गोद में मैंने स्विमिंग सीखी है. और मुझे स्विमिंग पूल फैसिलिटी नहीं पता थी, पूल क्या होता है, कॉस्ट्यूम क्या होता है, सेम लाइक अदर्स. और उन सब मुश्किलों को क्रॉस करते हुए, और जब मुझे पूल मिला है वो मुझे यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, वहां जाके पूल मिला है. तो हमको, हमारे जैसे, मेरे जैसे और आपके जैसे ना जाने कितने ही ऐसे तैराक होंगे जो कि अपना जीवन, जिन्होंने स्विमिंग के लिए, तैराकी के लिए समर्पित कर दिया है. तो उसमें से कुछ लोग निकल के उभर कर आ गए हैं, जिसका ये 2 एग्जाम्पल है, डॉक्टर मीनाक्षी पाहूजा एंड बुला चौधरी मैम. अब हम बात करते हैं हमारे कि जो क्वेरीज थी उसके आंसर मैं आपको मीन वाइज दूंगी कि आपने क्या, वो जो 3 मैंने क्वेरीज पूछी हैं उसका आंसर आप अभी बॉक्स में देते जाए, वो मैं अभी आपसे उस पर चर्चा करूंगी. अब हम आते हैं हमारे एक्वा योगा की तरफ. देखिए, एक्वा योगा के पहले, आने के पहले हमको ये जानना होगा कि हमारा ये कंसेप्ट आया कैसे, एक्वा योगा का ओरिजिन कैसे हुआ. हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया आप सबको पता है, बट फिर भी स्टिल आई एम रिमाइंडिंग इट कि 2 प्रकार के कंसेप्ट है. जैसे हिंदू कंसेप्ट में हम कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हमारे जो भगवान है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी है. और क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम का बिलीव है कि गॉड ने बनाया है पृथ्वी को और हम सबको, और उन्होंने 6 दिन के अंदर जो है
इस सृष्टि का निर्माण किया है। और साइंटिफिक इस सृष्टि का जो निर्माण अलग अलग साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके उन्होंने दी है वो अलग अलग प्रकार की ये है कि कुछ का मानना यह है कि जो हमारी लाइफ है वो इट्स बिगिन एट द डीप सी, वो कहीं पानी में अंदर समुद्र के अंदर हुई है, या फिर आप मेरे सेकंड उसमें देख सकते हैं सेकंड की सेकंड मेरा पिक्चर आप देखेंगे, देयर इट इज कि लाइफ एट द चिली स्टार्ट। और आप तीसरे वाले में देखेंगे कि उसमें मॉलिक्यूल्स है कि मड में जो है कि कोई प्रकार का रिएक्शन हुआ, मीथेन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिले और इनके रिएक्शन के द्वारा एक सिंगल सेल बनी जिसको अमीबा कहा, और उससे फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। और चौथे प्रकार का पिक्चर देख रहे हैं, देयर इट हैज बीन कि आपका इलेक्ट्रिक शॉक्स हुआ बिजली के चमकने से और वाटर की रिएक्शन से और गैसेस के रिएक्शन के कारण जो है डिफरेंट प्रकार के जो रिएक्शंस हुई, और हमारी ये जो जीवन का जो सिंगल सेल जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी में, उसका हमारा निर्माण हुआ। और इस प्रकार मानव सभ्यता का सभी जानते हैं होमो सैपियंस से लेके और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो आज के इरा में हम देखते हैं वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। और इस सभ्यता के दौर में, इस विकास की प्रगति के पथ पर यू कैन सी कि जो पानी है, पानी का कितना इंपॉर्टेंस रहा है। और पानी क्योंकि हम ये पढ़ा है हमने अपनी आप शुरू में पढ़ते ही आ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी मानव सभ्यता का जो विकास है वो नदियों के किनारे ही जाता हुआ है या समुद्र के किनारे, क्योंकि वहां जीवन के हमें कई प्रकार के फॉसिल्स पाए गए हैं और रिसर्चेस पाई गई हैं। अब आप मेरी दो पिक्चर देख रहे हैं नीचे की ओर, उसमें जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है उसमें लियोनार्डो दा विंसी की पिक्चर है जो कि 1488 और 90 के बीच की है, जिसमें एक आदमी है और लाइफ बेल्ट पहना है एंड ही इज स्विमिंग। सेकंड पिक्चर आप देखेंगे लेस नेगरस का है, द स्विमर्स हैं जो कि नाव में बैठे हैं, कुछ जंप मार रहे हैं कुछ। तो इस प्रकार से जो पानी है, पानी से रिलेटेड एक्टिविटी का जो है धीरे धीरे जो ह्यूमन की लाइफ में है वो जुड़ते जा रही है। और इसका प्रादुर्भाव मैं कहूंगी कि मानव सभ्यता के साथ साथ ही तैराकी का जो है जुड़ाव होता चला गया। अब आप आइए, अब हम चलते हैं कि जब इसका प्रादुर्भाव होते जा रहा है और धीरे धीरे अब लोगों ने क्या करा कि जब वो पानी में पहले कैसे रिक्रिएशन खेलते थे, और 1800 से 1900 के बीच में या आप डिफरेंट पिक्चर्स देखेंगे, इन डिफरेंट पिक्चर्स में नाउ यू कैन सी कि जो बिल्कुल फीमेल्स खड़ी हुई हैं, डेक के ऊपर टॉवल रखा हुआ है और वो साथ लेने जा रही हैं। तो तैराकी का ऐसे डिफरेंट स्टेज में डेवलपमेंट होता गया। और आप कुछ देखेंगे कि नाव में जो ये स्विमिंग हो रही है, ये हमारे 1896 का जो फर्स्ट एथेंस ओलंपिक था वहां पर सबसे पहले स्विमिंग को इंक्लूड किया गया, जिसमें कि देयर वर ओनली मेल्स वर अलाउड एट दैट टाइम एंड 1912 से फीमेल्स वर अलाउड, जो स्टॉकहोम में हुआ था जो ओलंपिक्स में इसको स्विमिंग इवेंट को शामिल किया गया। और उस टाइम ऐसा बहुत फॉर्मल स्विमिंग पूल्स नहीं थे। इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में ही स्विमिंग पूल थे जो कि कंक्रीट सीमेंट के बने होते थे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो लेक होती थी, पॉन्ड होते थे, वहां पर ये जो नाव आप देख रहे हैं, नाव के साथ ही स्टार्ट लेकर ऐसे ही स्विमिंग की जाती थी। और वही नहीं, हम तो हमारे इस भारतवर्ष की बात करें, मेरे जैसे कई लोग थे जिन्होंने अपना स्विमिंग का करियर भी ऐसे ही नाव के साथ, दो नाव को बांध देते थे नदी में और उसमें बीच में रस्सियां बांध देते थे और ऐसे हमने अपनी स्विमिंग करना शुरू किया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है पानी का एक लगाव हो गया और वाटर को स्विमिंग से जहाँ जोड़ते हुए एक कंपटीशन के रूप में लाया गया। धीरे धीरे ये जो कंपटीशन है, स्विमिंग कंपटीशन, उसके कई प्रकार होते गए। ये जैसा कि आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि अब जो तैराकी है वो किस प्रकार से एक अलग से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसने ले लिया है। उसका हर एक जो तैराकी से जुड़े हर एक पहलू है, चाहे मैं उसके इक्विपमेंट की बात करूं, स्ट्रोक की बात करूं, स्विम वेयर की बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग से जुड़े जितने भी चीजें हैं, नाउ इट इज कमिंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिकली बेस्ड। ये सारे साइंटिफिकली बेस्ड हैं।
आप सभी जानते हैं कि स्विमिंग को जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो गवर्निंग बॉडी है इसकी, दैट इज फिना। फिना जो है, इसके सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड वी फॉलो इट। और इंडिया में जो है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो सारे इसके रूल्स हम उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिशन्स और कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो स्विमिंग पूल है स्टैंडर्ड ओलंपिक साइज जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं 50 मीटर का होता है, 10 लेन्स होती है। आजकल तो 2 लेन एक्स्ट्रा छोड़ी जाती है फॉर द टर्बुलेंस ऑफ वाटर। वाटर की जो टर्बुलेंस है, वो जो वेव्स बनती है, इसलिए लास्ट की 2 लेन छोड़ी जाती है। पूल्स का भी जो कंस्ट्रक्शन है, आप ये देखिए कितने साइंटिफिकली, कहाँ पहले नाव में स्विमिंग करते थे, अब जो पूल्स भी हैं वो पूल्स के भी डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं। कुछ फास्ट पूल भी होते हैं। जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो उस टाइम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बने थे और सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड उस टाइम बनाए गए थे। और आप सभी जानते हैं कि उस टाइम माइकल फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लिए गए थे। तो बहुत सारी रिसर्च चली कि भाई एकदम से इतने मेडल कैसे आ सकते हैं। और नॉट ओनली माइकल फेल्प्स, उस टाइम अदर जो स्विमर्स थे, टॉप लेवल इलीट स्विमर्स थे, they have made the history that time in that Olympic। तो रिसर्चेस के द्वारा पाया गया कि एक उनका कारण हो सकता है स्विमवेयर, जो कि उस टाइम की जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो बनाई गई थी, जो कंस्ट्रक्ट करी गई थी, वो नासा के द्वारा उसमें जो फाइबर्स यूज किए गए थे वो ड्रैग को कम कर रहे थे। एंड दैट टाइम स्विमर्स वर वियरिंग फुल थ्रू आउट द बॉडी स्विमिंग कॉस्ट्यूम फ्रॉम नेक टू टिल एंकल। फिर उसके बाद चेंज लाया गया कि नहीं, ऐसे में तो हमारी जो कंपटीशन की भावना है वो खत्म होती जाएगी धीरे धीरे और कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचेगी। तो उन्होंने उसके बाद फिना का जो एक उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया और उसके बाद ये रूल बनाया गया। आप देखेंगे यहाँ स्विमवेयर कॉर्नर में है कि मेल कैन बी वियर टिल ओनली द देयर लेवल बिलो द नेवल और अबव द नी। और फीमेल का भी सेम ऐसे ही है कि आप नी के अबव पहनेंगे और शोल्डर नहीं कवर होंगे उसमें, तो जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस आप दे सकें। साथ ही साथ 2008 का जो बेजिंग ओलंपिक का जो स्विमिंग पूल था, उसका जो कंस्ट्रक्शन था, उसका जो स्ट्रक्चर था, वो इस प्रकार था कि वो टर्बुलेंस को काफी खत्म कर देता था। उसकी डेप्थ भी अलग थी, उसने 2 मीटर थ्रू आउट द लेन डेप्थ रखी थी, जैसे कि यहाँ 2.5 मीटर है, बट दे केप्ट चाइनीज केप्ट 2 मीटर थ्रू आउट द लेन। तो ये जो है ये कुछ स्विमिंग के एस्पेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए। पहले तो हर एक लेन पर 2 टाइम कीपर होते थे, एक टर्न टच होता था। नाउ इट हैज चेंज, अब हमारे उसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया आ गया है, क्योंकि अब जो रेसेस होती हैं उसमें आपका मिली माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होता है डियर फ्रेंड्स। मिली माइक्रो सेकेंड से आप एक रेस को जीत सकते हैं और एक रेस को हार सकते हैं। बीरबल खड़े, जो कि आप जानते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में 2008 के ओलंपिक में ही उन्होंने अपना कॉम्पिटेंसी दी थी बटरफ्लाई में, उनका मिली माइक्रो सेकेंड से उनका हीट क्वालिफिकेशन के लिए फाइनल राउंड के लिए रह गया था। ये कुछ स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं, हम सभी जानते हैं 4 टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री, बैक, ब्रेस्ट और बटल। और ये स्ट्रोक्स भी आपको पता है कि पहले ब्रेस्ट स्ट्रोक आया था और उसके बाद और फ्रंट क्रॉल, जिसको फ्री स्टाइल कहते हैं। और इन स्ट्रोक से डिफरेंट स्ट्रोक्स हमारे जो ये 4 प्रकार के स्ट्रोक्स को करे गए हैं और उनके अलग अलग पैमाने हैं कि आपको कितना किस लेवल तक के हेड निकालना है, कितना पैर निकालना है, आपको स्विमिंग रेस फिनिश कैसे करनी है, टच कैसे करना है। सी, जो लोग स्विमिंग से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, तो वो ये जानते हैं कि पहले के समय से और आज के समय में जो स्विमिंग कॉम्पिटिशंस और रेसेस हो रही हैं उनमें कितना चेंजेस आ गया। व्हाई दिस चेंजेस, क्योंकि हमने अपनी साइंस को प्रगति करी, साइंस में प्रगति करी, रिसर्चेस किए। और ये जो अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स केवल एक खेलने के लिए या शारीरिक और उसके लिए नहीं है, स्पोर्ट्स अब इफेक्ट करता है इकोनॉमी को भी। इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स का। आप सभी जान रहे होंगे ये जो पैंडेमिक टाइम है, इट हैज हर्ट द होल वर्ल्ड इकोनॉमी। और सबसे ज्यादा आपको पता है, सबसे ज्यादा देखने वाला जो स्पोर्ट्स है नेशनल फुटबॉल फेडरेशन का नेशनल फुटबॉल लीग, जिनको कि 487 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है इस पेंडेमिक टाइम में, जो रिसेंट अभी स्टेटिक रिसर्च जो की बताती है। तो
स्पोर्ट जो है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को पर डिपेंड करता है और इफेक्ट भी डिपेंड भी करता है एंड इफेक्ट भी डालता है। दिस इज द बायलैटरल प्रोसेस। और ये कुछ पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है स्विमिंग पूल में स्विमिंग एंजॉय कर रहे हैं। थिंग इज कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ द ओरिजिन ऑफ आवर लाइफ टू हियर वी हैव ऑप्ट द स्विमिंग एज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। उनके हमने फिर उसका अलग अलग प्रादुर्भाव, पानी से हमारा अलग अलग खेल, अलग अलग क्रीड़ाएं निकलती गई। यहाँ कुछ वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, आप देख सकते हैं, जैसे ओपन वाटर स्विमिंग, जिसका कि मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। ओपन वाटर जिसमें कि आपकी मैराथन स्विमिंग्स होती है, मैडम बहुजा मैडम, बुला चौधरी, और इसके पहले हमारे सैन, अमृता सैन, और भी बहुत सारे लीजेंडरी इंडिया से हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम उन सबको इतना लाइमलाइट या उनको जितना हमें इस मुकाम पे आने के बाद हमें उनको जितना जानना चाहिए था, हम कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अभी के टाइम पे जो इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन चल रहा है, इंटरनेट के थ्रू हम जो चीजों से अब जो वेबिनार्स चल रहे हैं, खासकर मैं ये कहूंगा आजकल तो फ्लड आ गया वेबिनार्स का, आई कैन से इट। बट इस फ्लड में कहीं ना कहीं जो मेरे जैसे एस्पायरेंट हैं, जो लर्नर हैं, उनको यदि कभी वो एक झलक भी फेसबुक में या वेबिनार के थ्रू वो देख लेंगे तो शायद वो उनकी लाइफ के लिए एक मोटिवेशन एस्पेक्ट होगा जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला देगा। बहुत से मैं जानती हूँ ऐसे स्विमर्स हैं जो कि दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड। आई एम फ्रॉम नाउ, आई एम वर्किंग इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी माय डियर फ्रेंड्स, और मैं इस पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के रीजन में देखती हूँ कि कॉम्पिटेंसी की कमी नहीं है, कैलिबर्स की हमारे पास कमी नहीं है, ओनली वी आर लेकिंग बिहाइंड कि हमको वो प्रॉपर प्रोसेस, वो स्कीम, वो एजुकेशन, वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है जिसके फलस्वरूप हम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा सके या हमारी जो कॉम्पिटेंसी है उसको हम शो कर सकें। तो ये मैं बार बार कह रही हूँ कि इस प्रेजेंटेशन को मेरा दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं आपको जो वाटर से रिलेटेड, स्विमिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स और क्या हो सकते हैं, क्या ऑल्टरनेट हो सकते हैं, वो आपको मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर है ओपन वाटर स्विमिंग, ट्रायथलॉन, जो कि आप जानते हैं कि 3 इसमें प्रकार की एक्टिविटी होती है, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रनिंग होती है, सी स्विमिंग होती है, उसमें 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की आपकी उसमें सॉरी साइकिलिंग है, और 40 किलोमीटर की रनिंग है। देन आपका हाइड्रोथेरेपी आ रहा है, फिर आपसे इससे रिलेटेड और क्या है, डाइविंग, सिंक्रोनाइज डाइविंग भी आजकल आ गई है, वाटर पोलो, पहले वाटर पोलो दैट वाज ओनली फॉर द मेल, नाउ इट्स आल्सो बिकम फॉर द फीमेल। सिंक्रोनाइज स्विमिंग भी है, पैरा स्विमिंग। पैरा स्विमिंग का जब नाम आता है तो मैं अपने गुरु को शत शत नमन करती हूँ कि जिनके फलस्वरूप आज मैं यहाँ पर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर BK दबा सर, जिन्होंने पैरा स्विमिंग में हमारा इंडिया का एक अलग ही लेवल ला दिया है, अलग नाम कर दिया है, और मैं उनकी शिष्या रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पैरास के साथ वर्क करना, स्पेशल चाइल्ड के साथ वर्क करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उनकी स्विमिंग यदि आप देखेंगे तो दैट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम आल्सो एंड फॉर अस आल्सो, एंड इंडिया नाउ हैज ब्रिंग सो मेनी लॉरेल्स इन दिस पैरा स्विमिंग। वाटर से रिलेटेड और एक्टिविटीज हमारी हैं, जैसे एक्वा एक्सरसाइजेस, एक्वा जुम्मा, एक्वा योगा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एक्वा योगा। देखिए, अब आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे कि जो एक्वा योगा है, आप सोच रहे होंगे कि एक्वा योगा आया कहां से, या एक्वा योगा का कंसेप्ट कैसे आया। देखिए, एक्वा योगा का कंसेप्ट कोई आज का नहीं है, बस ये जो था ये हमारे सनातन कालों से चला आ रहा है। आप इस पिक्चर्स इन फिगर्स में देखेंगे कि ऋषि मुनि, मेरी फर्स्ट वाली पिक्चर में देखेंगे कि ऋषि मुनि जो है कि वो प्रणाम कर रहे हैं और अपना सूर्य के सामने नमस्कार कर रहे हैं। इसी प्रकार आप दूसरी पिक्चर्स में देखेंगे कुछ फीमेल नदी में, तालाब में, जहां भी जो भी नियर बाय अवेलेबल है उसमें जा रही हैं और स्नान कर रही हैं। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, हमारे यहाँ होली डे इट्स ऑलवेज फेमस। आपने कुंभ के बारे में सुना होगा, अर्धकुंभ, महाकुंभ मेला होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में होली डे, जैसे छठ पूर्वांचल साइड खासकर यूपी रीजन में छठ बिहार में बहुत ही
ये 6 दिन का बनाया जाने वाला जो एक उत्सव, जो एक त्योहार है, आखिर क्यों बनाया जाता है, ये हॉलीडे क्यों ली जाती है, ये क्वेश्चन आता है। तो डिफरेंस, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि ये वहां पर जाके जो स्नान करते थे, वो जो सूर्य नमस्कार करके वहां पर अपनी थोड़ी बहुत शारीरिक क्रिया, शारीरिक एक्सरसाइजेस जो करते थे, और उन एक्सरसाइजेस के करने के बाद वो बाथ लेते थे पानी में नहा के धोकर, और अपने नित्य कर्म की क्रिया करने के बाद भगवान को अर्पण करने के बाद वो अपना दिन शुरुआत करते थे। तो ये जो हमारी यौगिक क्रियाएं आज से नहीं चली आ रही है, पानी में भी वो क्रियाएं करते थे, बैठ के समाधि लगाते थे, प्राणायाम करते थे, आसन पानी में खड़े होकर घंटों खड़े होकर वो अपने आसन और वहां पर क्रियाएं करते थे। अब बात आती है कि वाई वाटर। अब एक्वा योगा में यदि हम बात करें कि भाई योगा तो हम कर ही रहे हैं, वी आर डूइंग इट इन थाईलैंड, तो हम पानी में योगा क्यों करें? तो उसको पानी में योगा करने के जो, अब इसका जो मेरा मेन कंटेंट है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्यों वाटर एक्वा योगा करने से क्या बेनिफिट है, क्यों करना चाहिए, उसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बता रही हूँ। सी, पानी जिसको कि हम अलग अलग नाम से जानते हैं, पानी, वाटर, तरु, नीर, जिसको हम कहते हैं अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं कि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हमारी सर्वाइवल, हमारी एग्जिस्टेंस ही पानी से रही है, तो हम पानी के बिना कैसे वो कर सकते हैं? एक्चुअली में पानी की जो बायोकेमिस्ट्री है दैट इज H2O। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल है। मैं केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बट ये एक एक्चुअली में केमिस्ट्री में कहा जाता है कि हर एक तत्व को अपनी बैलेंसी, जो उनकी ऑक्टेव का जो उनकी बैलेंसी होती है वो बना के रखना चाहते हैं, अपने आप को संतृप्त करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कुछ गैसेस होती हैं जो संतृप्त होती हैं, हीलियम, नियॉन, ऐसे करके जो उनकी कैटेगरी है, इसी प्रकार हर एक मॉलिक्यूल अपनी बैलेंसी को बना के रखना चाहता है। और ऑफ कोर्स हम जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट और सेटिस्फाइड करके रखना चाहते हैं कि भाई हमारा घर तो बस गया, अब हमने अपना घर बसा लिया, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान आ गया। उसी प्रकार H2O की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन क्या होता है, उसके आउटर शेल में 6 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये हाइड्रोजन अपनी अब इनने क्या करा, दोनों के पास कमी है, तो ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। बॉन्डिंग करने से हाइड्रोजन को भी 1 मिल गया और ऑक्सीजन को 2, तो इस प्रकार H2O बनता है। पानी की सबसे अच्छी ब्यूटी, यू नो व्हाट इट इज, वाटर इज ओनली, दिस इज प्रोडक्ट, एक ओनली ऐसा केमिकल सब्सटेंस है नेचर में, हमारी भगवान ने, हमारी प्रकृति ने हमको दिया है कि इट प्रेजेंट इन द 3 फॉर्म्स, जो कि आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड और स्टीम गैसियस फॉर्म। बस इनका एक प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, मेल्टिंग, इवोपरेशन, कंडक्शन एंड फ्रीजिंग। तो जब पानी के इतने रूप होते हैं तो उसका हम अलग अलग टाइम में अलग अलग हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड इज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप कोई भी चीज इजीली घोल सकते हैं, वो घुलनशील है, बहुत अच्छे से वो सारी चीजों को घोल लेता है। Now, the third one is कि पानी जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको तभी बताया कि हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति है उसमें पानी का कितना बड़ा रोल है, शायद वो समुद्र से आई हो या बारिश से आई हो, और हम भी तो हमारे जीवन का जो जन्म है हम अपनी माँ की कोख से, माँ के वॉम से, हम एक एम्बॉयटिक जो फ्लूइड है उस फ्लूइड से हम बाहर आ रहे हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम मैच्योर होते जाते हैं तो जो वाटर का जो लेवल है मैच्योर में जो होता है 60% होता है वाटर लेवल, और एडल्ट में 50 to 55% वाटर लेवल है, और न्यूबॉर्न बेबी में इट इज 80%। तो ये वाटर का जो लेवल है वो धीरे 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 डिटोरिएट होता जाता है। इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश करी है कि पानी का हमारे ऑर्गन्स कितने कितने ऑर्गन्स को कहाँ कहाँ कितना पानी, जैसे ब्रेन में 75%, ब्लड में 83%, एडिपोज टिश्यूज में 10%, तो हर जगह हमारी बॉडी में, पूरे होल बॉडी में पानी की हमारी कितनी मात्रा है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सी, अब यहाँ पर हम आते हैं
कि एक और एस्पेक्ट है जो फिजिकल, जिसको मैंने आपको ये केमिस्ट्रिकल और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। नाउ इट कम्स कि वाटर जो है उसकी ये फिजिकल इतनी क्या प्रॉपर्टीज है। तो हियर आर टू फोर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट वन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड बायंसी, थर्ड इज एज ए रेसिस्टेंस एंड फोर्थ इज ए वाटर एक्ट एज ए थर्मल कंडक्टर। सी अब हम इनकी फिर से एक बार एक एक करके हम इन एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आप देख सकते हैं स्लाइड में कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि ये प्रेशर होता है जब भी आप कभी भी पानी के अंदर गए हो, आपको कभी ऐसा मौका मिला हो स्विमिंग पूल में, नदी में, तालाब में, समुद्र में, या आपने डाइव मारी तो आपको एक प्रेशर फील होता है, खासकर कानों में। जितने आप पानी की गहराई में जाते हैं उतना ही ये प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। इसकी एक डेफिनेशन बताया है, एक स्टडी भी हुई थी रोनाल्डो के द्वारा 2014 में करी है कि द वेट ऑफ अ फ्लूइड इन द केस वाटर, जिसमें क्या है वाटर एक केस है अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, मतलब फ्लूइड एक जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि बॉय इज स्टैंडिंग इनसाइड द पूल और देयर इज अ स्टेयर और एरोज बने हुए हैं उसमें, और ये जो एरो है उनकी थिकनेस जो है उसके पैर के नीचे तक जाते जाते इट्स इंक्रीजिंग। जितनी गहराई होगी आपका प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। और इस प्रेशर, अब आप सोचेंगे इस प्रेशर से मुझे क्या करना है। ये प्रेशर जो है इट इम्प्रूव्स, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है कि आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन है, जो आपका ब्लड का फ्लो है, इट गोज टुवर्ड्स द योर लिम्ब साइड, आपके पैरों की तरफ जाता है। बट यदि ये प्रेशर आपको होता है तो ये प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, फिर आपको वो टुवर्ड्स द हार्ट करता है, आपके लिम्ब से, आपकी वेन से होते हुए आपके लंग्स को और इसके हार्ट की तरफ सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और इस सर्कुलेशन की जब आपका मूवमेंट एक बार हो जाता है तो आपको ये बहुत जगह हेल्प मिलती है। हेल्प किसमें मिलेगी? इट रिड्यूस स्वेलिंग, इम्प्रूव सर्कुलेशन, आपकी सोननेस, लैक्टिक एसिड, मतलब थकान जब आपको बहुत ज्यादा हो जाती है, तो देखिए नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि हमको जब थकान हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक अच्छा सा शॉवर बाथ ले लिया जाए। खासकर आजकल इन दिनों में जब इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ऑल ओवर इंडिया में और इतना गर्मी का माहौल है, तो एक सिंपल सा नहाना हमारे को पूरा रिफ्रेश कर देता है। उसी प्रकार आप सोचिए कि आपको ये, यदि आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी यौगिक क्रिया आप यदि पानी में करते हैं तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। This was the hydrostatic pressure. Now, dear, it's buoyancy. देखिए buoyancy के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और buoyancy जो है यही है जिसके कारण हम पानी में तैर पाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट स्विम कर पाता है। आर्किमिडीज का लॉ आप सभी ने पढ़ा है कि हम, आर्किमिडीज का कहना था कि जितना पानी हम बाहर फेंकते हैं उतना ही हम फ्लोट करते हैं। बायंसी फोर्स होता है जो कि आपको ऊपर की ओर जाता है। बायंसी के कारण क्या है कि ये जो है जितना आप पानी में जाएंगे उतना आपको ये ऊपर की फ्लोट करेगा। बायंसी हमको हेल्प करता है स्ट्रीमलाइन पोजीशन मेंटेन करने में। बायंसी के करके ही हम इंजरी से प्रिवेंट हो सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। वाटर की ब्यूटी होती है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है कि जब भी आप पानी में जाते हैं तो वो आपको 3 प्रकार के उसमें रेसिस्टेंस इंप्लाई होते हैं। एक होता है, आप ये देख रहे होंगे येलो कलर का है, फ्रंटल रेसिस्टेंस। दिस इज व्हेन जब स्विमर आगे की ओर जाता है तो ये सामने की ओर आपको बॉडी को रोकता है। क्यों? क्योंकि पानी की ये प्रकृति होती है, वाटर की यही तो क्वालिटी है। वाटर में कोहेजन की, जोड़ के रखने की, जो उनके आपस में जो H2O है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को वो छोड़ के रखते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वही वाली बात है। और यही चीज है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंदर आता है, पेनिट्रेट करता है, तो वो एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, और दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल रेसिस्टेंस, जो आगे की ओर होता है। ये जो रेसिस्टेंस है, इसी कारण आपने देखा होगा जो स्विमर स्विम करता है तो वो ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ वाटर करता है, ऐसे डाउन होके या इस तरफ डाउन होके वो स्विमिंग नहीं करता है, वो पानी के लेवल पर स्विमिंग करता है। सेकंड होता है स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन का जो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे हेयर लाइंस, हेयर्स के करके, या फिर एक और उदाहरण है इसका कि आप जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हैं उससे जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है,
वो स्किन फ्रिक्शन का है। और एडी रेजिस्टेंस, जब हम स्विमिंग करते हैं तो पीछे की ओर क्या होता है, वैक्यूम सा बनता है, उन वैक्यूम के करके भी रेजिस्टेंस होता है, जो कि आपको नीचे की ओर ड्रैगिंग इफेक्ट लाता है। सी, आपने कभी स्विमिंग करके देखा हो, आप एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करें, एक सी में स्विमिंग करें, और एक नदी में, और एक पॉन्ड में, इन चारों में आपको स्विमिंग करने में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेसिस्टेंस फील होंगे। नदी में स्विमिंग करना, जब उसके बहाव के साथ करेंगे, स्ट्रीम के साथ करेंगे, दैट्स वेरी इजी टू स्विम, बट अगेंस्ट द स्ट्रीम जब स्विम करते हैं तो इंडिविजुअल को हैव टू पुट सो मच प्रेशर, उनको बहुत रेसिस्टेंस होता है, और उसको ओवरकम वो टर्बुलेंस के करके होता है, और उसको बॉडी को प्रपोल करने के लिए हमें ज्यादा कैच करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि आप यदि सिंपल पानी में यदि आप खड़े हैं और आप केवल हाथों का मूवमेंट करते हैं, तो वो मूवमेंट ही आपका अकेला करना कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वहीं आप यदि वही एक्सरसाइज आप खड़े होके लैंड पे करें, तो आपको उतनी एनर्जी या कैलोरी बर्न नहीं होगा जितना कि पानी में बर्न होगा। इसकी स्टडीज मैंने बताई है। होता है और उसको बॉडी तो आप ये देखिए कि आप यदि सिंपल पानी कंडक्टर होता है। ये जो थर्मल कंडक्टर है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ सभी जानते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का, कि हम बिजली जो हम एनर्जी को we can't reduce, we can transfer it one form to another form। एक्चुअली में जो ये देखिए यहाँ पे बताया भी मैंने कि H2O का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी ये कैपेसिटी होती है, वो हीट को रिटेन काफी समय तक रिटेन करके रखता है, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड टू ट्रांसफर हीट एनर्जी। और वो इसके कारण जो हम अपनी एनर्जी को जो है, यदि हम or water is used to mainly as a way of controlling the edema and inflammation associated with lesion and minimize the fatigue and promotion of an athlete's recovery। और इसी कारण देखिए, जो जिसको कि एक्वाथेरेपी कहते हैं, वाटर थेरेपी कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, खासकर हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इंजरी तो लगेगी ही, इंजरी तो होती ही है, उनके लिए वाटर थेरेपी एक बूम होता है। जरा कुछ इंजरी हुई, स्वेलिंग होती है या कोई चोट लगती है, तो उसमें हम सबसे पहले ट्रीटमेंट फर्स्ट एड क्या लेते हैं, राइस के अकॉर्डिंग हम रेस्ट लेते हैं और आइस लेते हैं। आइस क्यों लगाते हैं, आइस लगाने से जहां पर स्वेलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो उसको रिड्यूस करेगा, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा। तो पानी आपकी स्वेलिंग को भी रिड्यूस कर रहा है, सर्कुलेशन को भी बढ़ा रहा है। तो पानी की गर्माहट, जब आपको पेन होता है, तो हम खासकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन देखा हो, तो हम क्या करते हैं, हॉट वाटर बैग, उस टाइम हम कौन सा लेते हैं, आइस नहीं लेते हैं, क्योंकि हॉट वाटर बैग जिससे कि हमारा सर्कुलेशन जो है इंक्रीज हो, और जो ब्लड में पानी का सर्कुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक फेज जो है कंपोजिशन चेंज हो, जिससे कि ब्रेन को एक हमारा ट्रांसफर हो और हमारा जो पेन का जो सब्सटेंस, पेन को रिलीव किया जाए। तो taking of medicine, instead of taking of these medicine, we can use the hydrotherapy at that time। So these are the 4 properties of the water which make any individual to do any activity in the water is more worthful, more beneficial, बहुत advantageous हो सकती है। चलिए, तो ये थी बातें हमारी, ये सारी जो मैंने बताया अभी तक की, कि पानी की प्रॉपर्टी क्या है, कि पानी के गुण थे, कि हमें पानी में ही क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए या क्यों योगा करना चाहिए। नाउ हियर वी कम, व्हाट इज एक्वा योगा। एक्वा योगा एक्चुअली it is the most comprehensive set of adaptation of ancient yoga practice in water। पानी में जो भी ये हमारे सनातन काल से जो चली आ रही हैं चीजें, जो हम आसन कर रहे थे, वो हम पानी में परफॉर्म करते हैं, वो चाहे हम रिवर में करें, सी में करें, पॉन्ड में करें, या ओपन वाटर में, या नेचुरल सोर्सेस वाटर के जहां भी हैं, उसमें जो भी हम आसन करते हैं उसको एक्वा योगा करते हैं, जिसमें हम स्टैंडिंग आसनास करते हैं, कुछ ब्रीदिंग क्रियाएं करते हैं, शवासन वगैरह करते हैं, जो कि हमारे माइंड को फिजिकल के साथ साथ हमें मेंटल रिलीफ और एक पीस देता है, मेंटल रिलीफ और पीस हमें प्रदान करता है। देखिए, एक्वा योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे
को आपकी जो ओबेसिटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ओबेसिटी मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, उसका ये एक स्लाइड है कि आप पानी में सिंपल, ये सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ये रिसर्च करी। उनके अकॉर्डिंग यदि कोई 154 पाउंड का कोई पर्सन है, तो सिंपली यदि फिजिकल एक्टिविटी यदि वो करता है स्विमिंग की, तो वो स्लो फ्री स्टाइल लैप्स लगाता है, तो वो कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, 255। एंड और यदि वो 1 घंटे के लिए वो स्विमिंग करता है, तो वो 510 किलो कैलोरी को वो बर्न कर रहा है। इंस्टेंट यदि वही आप वॉकिंग कर रहे हैं 4.5 एमपीएच की स्पीड से आप कर रहे हैं, सेम पर्सन 154 पाउंड का, तो वो कितनी कर रहा है, 230 कैलोरी बर्न कर रहा है। और स्विमिंग में आप कितनी कर रहे थे, 254। सेम ऐसे ही आप वॉकिंग में 460 कर रहे हैं, और जबकि स्विमिंग में आप कितनी कर पा रहे हैं 1 घंटे में, 510। सेम है, आप यदि सिंपल स्ट्रेचिंग, ब्लेंड स्ट्रेचिंग जिसको हम कहते हैं, यदि सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं, तो वहां पर आप कितनी कर रहे हैं, 90। और 1 आवर के लिए कर रहे हैं तो 180। तो सीडीसी ने ये एक रिसर्च अपनी दी है, जिसके अनुसार हम ये जान सकते हैं कि स्विमिंग के द्वारा जो कैलोरीज बर्न है हम कितनी कर रहे हैं। ये कैलोरी बर्न का मैंने बताया है कि यदि आप पानी में खड़े होके यौगिक आसन करते हैं, यौगिक स्ट्रेचिंग करते हैं, यौगिक जॉगिंग करते हैं, तो आप कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। यदि आप 150 पाउंड का कोई पर्सन है और वो 60 मिनट के लिए कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा है, तो 714 कैलोरीज बर्न करता है। वाटर जॉगिंग सिंपल, क्योंकि आपको भी ये लग रहा होगा कि एक्वा योगा तो केवल वही लोग कर सकते हैं जिनको स्विमिंग आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप केवल पानी में वेस्ट लेवल पे खड़े भी होकर भी या एक्सरसाइजेस या यौगिक क्रिया आप परफॉर्म कर सकते हैं, या सिंपल वाटर वॉकिंग, प्री आसन जिसको प्रिपरेटरी आसन एक्सरसाइजेस जिनको कहते हैं, वो कर सकते हैं। और वो आपकी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहा है, 204। आई थिंक आप वही यौगिक पोस्चर यदि आप लैंड में करते हैं और यही यौगिक पोस्चर आप पानी में करेंगे, तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, कम समय में आप ज्यादा कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक्वा योगा ओबेसिटी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, स्पोर्ट्स इंजुरीज में हमको हेल्प करता है, रिहेबिलिटेशन में। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपको फोर्थ इज कि प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि वी आर कमिंग फ्रॉम द मदर बाउंड फ्रॉम अ लिक्विड एनवायरनमेंट, एक लिक्विड एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो आपके वो बेबी के लिए भी यदि आप स्विमिंग कंटिन्यू रखते हैं, आप योगासन मतलब जो स्टैंडिंग आसन है, यदि आप पानी में खड़े होकर प्रेगनेंसी के टाइम पे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने टिल 9 मंथ तक अपनी ये जो क्रिया है, ये जो आसन है और स्विमिंग ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अपने कर सके। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एडवांटेजेस है। आपको इसमें कोई डर नहीं होता कि आप गिर जाएंगे या आपको हार्म करेगा, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एक्वा योगा हमें हेल्प करता है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए। ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोविड-19 सार्स सेकंड जो ये डिसीज है, ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ही है, जिसमें हमको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो जो स्विमिंग कंटिन्यू रखता है, जो एक्वा रिलेटेड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज रखता है, उनकी वाइटल कैपेसिटी कंपेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन ज्यादा होती है। फिटनेस आएगी, बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, बैलेंस के लिए दिस इज द बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको एक प्रेशर जो हाइड्रोटिक प्रेशर है, वो आपको बैलेंस क्रिएट करवाता है, बायंसी आपको लिफ्ट करा रही है, और आप जो है क्रियाएं उसमें कर पा रहे हैं। सेम वे आपको ये आपके सोने के लिए हेल्प करता है। एक्वा योगा मैं कहूंगी इट इज द बून फॉर एल्डरली पीपल और वुमेन के लिए है। क्यों? क्योंकि आप कुछ आसन जो पानी में नहीं, जो आप लैंड में नहीं कर पा रहे, जैसे शीर्षासन। शीर्षासन यदि हम अभी किसी एल्डरली पर्सन को कहें करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगी उसको डर लगेगा कि मैं कहीं आई मे फॉल डाउन समवेयर, आई मे बी इंज्योर्ड। बट पानी में आपको इंजरी की चांसेस नहीं है, आप बस थोड़ा गिरेंगे, आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है, अदरवाइज आप पानी में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और बायंसी आपको आपकी जो बॉडी है, इट विल लिफ्ट यू अप, वो आपको लिफ्ट कर देगी। तो दैट इज द बून फॉर एल्डरली पीपल एंड वीमेन के लिए तो सबसे अच्छा कि आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, कम समय में आप ज्यादा चीजें कर पा रहे हैं।
और ये सारी चीजें आपकी क्या कर रही है, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। और ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है कि आपको एक इनर पीस जो मिलती है, सोल की प्योरिटी मिलती है। जब पानी में आप सिंपल आप पद्मासन और पद्मासन लगा के भी आप फ्लोट करेंगे और लेट जाएंगे तो उसमें आपके कानों में जो वो पानी का जो मधुर संगीत आप सुनेंगे तो वो आपको शांति प्रदान करता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्सेशन देता है। डिफरेंट टाइप्स के ये आसन हैं, मैंने आपको जो बताया है इनमें से कुछ आसन स्टैंडिंग आसन हैं जो कि कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ताड़ासन है, उसके बाद वृक्षासन है, वरुणासन है, वीरभद्रासन है, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3। ये डिफरेंट टाइप्स के जो आसन से आप कर सकते हैं इसको पानी में। मैं टाइम को देखते हुए इनकी इम्पोर्टेंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि ताड़ासन की क्या इम्पोर्टेंस है और खासकर बैलेंसिंग में और हमारी एनर्जी को वो करने के लिए। देखिए जितना भी हम जो भी एक्सरसाइज जो भी हम आसन कर रहे हैं तो वो हमारे कहाँ कौन सी एक्सरसाइज करने में मेन हमारा होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उससे हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ रही है। तो वो सारे रीजंस मैंने आपको मेरे पहले की स्लाइड्स में बता दिए हैं। अभी इधर मैं केवल आपको ये आसन बता रही हूँ। See here you can see नटराजासन, धनुरासन, शीर्षासन। शीर्षासन में आप देख सकते हैं कि वहां पर एक ओल्ड मैन है। सी ओल्ड मैन जो कि he is standing with his on hand, अपने हाथों पे खड़ा हुआ है वो, और कितने आसानी से वो कर पा रहा है क्योंकि वहां पर आपको कोई डर नहीं है पानी का। पानी में आपको डर नहीं है कि आप कहीं गिर जाएंगे तो आपको कोई फ्रैक्चर हो जाएगा या हेड इंजरी हो जाएगी या सीवियर इंजरी हो जाएगी। देयर इज नॉट एट ऑल एनी चांस। ये कुछ अब आपकी स्क्रीन में ये पिक्चर्स आए हैं। दिस इज द पिक्चर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्विमिंग पूल। एज नंदिनी मैडम हैज ऑलरेडी टोल्ड अबाउट मी कि मैं यहाँ पर एज ए स्विमिंग पूल का भी चार्ज देख रही हूँ और यहाँ पर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर पीसी कापड़ी अभिमन्यु सिंह एंड टीसी राय सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जिस जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जिसका कि हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि लास्ट ईयर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस दे आर एंजॉयिंग द डिफरेंट आसनास। छोटे से लेके बड़े तक के छोटे बच्चे भी करते हैं, हमारे पास 80-90 ईयर के एज के भी पर्संस आते हैं। कुछ और ये पिक्चर्स हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें लाइफ गार्ड्स खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको प्रिपरेटरी आसन के लिए कैसे योगा आसन पानी में किया जाए। अभी इंडिया में मैं एक्चुअली में ये साइंटिफिक योगा का बताने का एस्पेक्ट मेरा यही है कि आखिर ये देन तो भारत की है, संस्कृति हमारी ये भारतीय संस्कृति की ही देन है योगा। और इसमें कई सालों से कई युगों से अलग अलग ऋषि मुनि ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसको बढ़ाने में दिया है, पर हम कहीं ना कहीं हमने योग को तो बहुत आगे तक ले दिया है। मोदी जी के पहल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग मनाने लगा पूरा विश्व, जिसको कि अब सेलिब्रेट करता है। पर हम जो ये एक्वा योगा, अब तो योग के बहुत सारे फॉर्म्स आ चुके हैं, आप जानते हैं एरियल योगा होता है जिसमें पानी में हवा में लटकते हैं और फंदे के साथ उसमें योगिक क्रियाएं की जाती हैं। तो कई प्रकार के प्रचलन उसमें आ चुके हैं योग के। पर माय डियर फ्रेंड्स, जितने मेरे व्यूअर्स में बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्वेटिक योगा है ये तो भारत की ही देन है और भारत में किया जाता था, बट थिंग इज कि इसको वेस्टर्न कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया है। अब आप मेरी स्लाइड में देख सकते हो, सेकंड स्लाइड में मैंने कुछ पिक्चर्स बताए हैं कि देखिए फॉरेन में कैसे इस एक्वा योगा को कितने बड़े विस्तृत रूप में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेंस वो जो है फ्लोटिंग जिसको डिवाइस कहते हैं, फ्लोटिंग टर्फ्स है जिसके ऊपर खड़े होके वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज ये एक्वेटिक योगिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या फिर हुप जिसको ये एक फ्लेक्सिबल फ्लोटेबल ट्यूब जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा इसकी हेल्प से जो कि मदद करती है आपके योगिक क्रिया को करने के लिए, योगिक आसन को करने के लिए। तो आखिर देन तो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत की है। तो मेरा अनुरोध है इस प्लेटफॉर्म से उन सभी भारतीयों को कि जो स्विमिंग से जुड़े लोग हैं कि कृपया
आगे आए और इसमें कंट्रीब्यूट करें और इसमें अपने को एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करें। ये भी एक रास्ता हो सकता है आपकी आत्मनिर्भरता के लिए। आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। आपको जहाँ पानी, देखिए पानी की उपलब्धता तो मेरे ख्याल से सब जगह पर है, चाहे वो सी में हो, वाटर रिवर में हो, पॉन्ड में हो, तालाब में हो। नहीं है तो कुछ आर्टिफिशियल पूल बना के भी हम पानी की उपलब्धता कर सकते हैं। खेतों के किनारे हौजी होती है जहाँ पानी कलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से उसके द्वारा भी हम पानी को, वाटर को उपलब्ध करा सकते हैं जहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। तो ये जो पिक्चर शो कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज की है, और ऐसा नहीं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। एक्वा योगा आपके इंडिया में भी, गुजरात, बड़ौदा में, बॉम्बे में, बेंगलोर, कर्नाटक, बहुत जगह पर अब ये धीरे धीरे एक इसका एक जो बहुत ही अच्छा स्वरूप निकल के बाहर आ रहा है और एक्वा योगा हो रहा है। देखिए अब मैं बात करूंगी आत्मनिर्भरता की, कि हमने जो एक्वा योगा किया अब उसकी आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट से कैसे आएगा। तो जो भी पर्सन, जो खासकर मैं इसके लिए अपील करूंगी, हमारे जितने स्विमिंग फैटर्निटी से, स्विमिंग से जितने जुड़े लोग हैं, खासकर जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस समय 30 लोग लाइफ गार्ड एंड स्विमिंग वर्कर्स आर वर्किंग देयर। तो यदि हम सब मिलके इसके और पहल करें अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना सेल्फ डिसिप्लिन, हमको उसके बारे में जानना होगा, रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी, हमको एक दूसरे इंटरेक्ट करना होगा, इसकी पॉपुलैरिटी के लिए हमको समझना होगा कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसको हम कैसे लाइव स्ट्रीम पे लाया जा सके। इसके लिए हमें सिंपली आप घर पे बैठ के तो नहीं कर सकते हैं, आपको इसको लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको इसके साथ लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। साथ ही साथ आज के समय में जैसे ये पैंडेमिक टाइम है और हर कोई अपने घर पर है, तो जो लोग एक्वा योगा से जुड़े हैं वो कम से कम इंटरनेट और मोबाइल के, और उनको यदि इसका नॉलेज हो, थोड़ा थोड़ा लैपटॉप का नॉलेज हो, तो वो लाइव स्ट्रीम के द्वारा योगिक आसन, योगिक पोस्चर बता सकते हैं। दे कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम दैट साइड, ये भी एक तरीका हो सकता है अर्निंग का। और हमको अपनी माइंड की सेटिंग करनी होगी, कहीं ना कहीं अपना विजुअलाइजेशंस को बढ़ाना होगा इस आत्मनिर्भरता के लिए। देखिए हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमको अपनी भी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना होगा, कैलिबर्स को। कुछ सालों से आप देखते आ रहे हैं कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि खेलो इंडिया जैसे और बहुत सारी कई प्रकार की स्कीम लेकर आई है। ब्रॉडकास्ट में हमको कई प्रकार का हेल्प मिल रहा है। तो धीरे ना धीरे वो सारी चीजें जब आ रही है, तो पर उसके पहले हमें भी बीइंग इंडिविजुअल, हमारी एक बीइंग सोसाइटी मेंबर, इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पहले उस सक्षम तो हो सके। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में बताया था, आप देख भी रहे हैं बैकग्राउंड में, कि डॉक्टर मीनाक्षी मैम एंड डॉक्टर बुला चौधरी मैम कितना हार्ड स्ट्रगल करा है। ओपन वाटर का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं था और उन्होंने इस कंसेप्ट को इंडिया में लाया है और अपने नाम के साथ अपने भारत का नाम जो है रोशन किया है। तो कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि सजेशन ये है कि आत्मनिर्भरता और हम कैसे ला सकते हैं इस फील्ड में स्विमिंग के, कि हमको देखिए बायलैटरल कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्विमिंग फेडरेशंस के साथ, और जो फेटर्निटी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या जो अलग अलग लेवल पर है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन है, एक हार्मोनियस बायलैटरल प्रोसेस है, जिसमें कि आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, LNIP, LNCP ग्वालियर, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर की स्विमिंग को एज ए स्पेशलाइजेशन कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो वहां पर एक्वा योगा जैसे स्किल कोर्सेज को डेवलप करना होगा, उनको लाना होगा, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, उनको अवसर प्रदान हो सके। तो इस प्रकार से हम उनकी इंडिपेंडेंसी ला सकते हैं। लर्निंग ऑफ जार्गोन एंड रिकॉग्नाइज रियलिटी, हम अपने जो आलस है उसको छोड़ के रियलिटी को पहचाने कि आज के समय की नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में एक क्वेरी करी थी कि हमने क्या कोई मूवी देखी है, क्या ब्रॉडकास्टिंग होती है,
नहीं, क्योंकि अभी तक के ब्रॉडकास्टिंग जो मीडिया है और उसने स्पोर्ट्स को उस तरह से अभी नहीं लिया है। कुछ एक एग्जांपल छोड़ के, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या कोई अदर जो हमारे एग्जांपल्स हैं, हम उन्हें छोड़ के हम स्विमिंग में देखेंगे। यदि हमारे पास सामने, जैसे हॉकी में शाहरुख खान ने जो पिक्चर बनाई थी हॉकी को लेके, तो कितने लोग उससे एक्सपायर हुए थे, कितने लोगों को मोटिवेशन मिला था। यदि ऐसे ही पिक्चर अमृता सेन, गुला चौधरी और मीनाक्षी आहूजा जैसे लोगों पे सीरीज या फिर मूवी लाई जाए, तो लोगों को एक ब्रॉड व्यू मिलेगा। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो भी समझेंगे कि ये भी एक जरिया हो सकता है रोजगार का, आत्मनिर्भरता का। साथ ही साथ बीइंग एजुकेशन, गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि हम ऐसी पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएं पूरी इंडिया में, जिससे कि वो एक अवसर प्रदान करे ब्रेड एंड बटर के लिए और एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन उसके लिए लाए। आई होप मैंने काफी टाइम ले लिया है। साथ ही एक लाइव स्लाइड और है जिसमें ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, इंडिया में अभी 2 की स्टेट खासकर हम डोमिनेंसी देखते हैं, 2 या 3, जिसमें कि कर्नाटक, दिल्ली। कर्नाटक का एक्चुअली मैं पढ़ रही थी कि अभी वहां पर 46 स्विमिंग क्लब्स हैं और करीब 70 पूल्स हैं जो कि ऑपरेशनल्स है, और आपको पर पर्सन 15,000 से 17,000 जो है सैलरी मिलती है कोचेस को। तो कर्नाटक एक ऐसा, इट इज द स्टेट जो कि मदर ऑफ स्विमिंग कह रहे हैं, मदर ऑफ ओलंपिक स्विमिंग, प्रोड्यूसर स्टेट जिसको कहने की सबसे ज्यादा ओलंपियन स्विमिंग में वीरवल खड़े हुए, और जितने हम कोचिंग के लिए वहीं जाते हैं, बिकॉज हेड कोच जो है स्विमिंग के डॉक्टर प्रदीप सर बहुत अच्छे वहां पर कोचिंग अपना दे रहे हैं। निशा मलट एकेडमी, बहुत सारी एकेडमीज रन कर रही हैं। तो ये सारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। पर अभी हमारे इंडिया में वी आर फार लेकिंग बिहाइंड, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे हैं। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर ही यदि हम देखें, खासकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कितने स्विमिंग पूल होंगे, यू कैन काउंट ऑन योर टिप्स ओनली, योर फिंगर्स ओनली, बहुत कम है। तो बहुत कम ऐसे जो लोग हैं मेरे जैसे, मेरे ही सामने ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जो बहुत कैपेबल स्विमर्स हैं, बट उनको टाइमली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है या फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। बट नो वरीज, यदि आपकी दृढ़ निश्चय है और आप में साहस है, तो आप उसको, किसी भी समस्या को आप आगे निकल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, और ये कुछ कोटेशंस है, सिर्फ उतना ही मिलता जितना कोशिश करने वाले छोड़ते हैं। और जैसा विवेकानंद जी ने खासकर आत्मनिर्भरता के लिए कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य का प्राप्त ना हो। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। Yes, thank you so much, ma'am. Dr. Kavita Verma, it was really, really very informative and, wonderful session especially for me. Because being a female, we know how important, yogic exercises, especially during pregnancy time, how important it is. And ये हमारी बहुत विडंबना रही है मैम कि हम भारतीय हैं तो समझने में इतना वक्त लगा रहे हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी इस चीज की आ गई है। इट इज रियली वेरी नाइस। हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हम लोग के जो इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, हो सकता है यही देखकर जो हमारी आगे आने वाली जो मॉडर्न जनरेशन है इसको एक्सेप्ट कर ले। बट बाय हुक और क्रूक किसी भी रीजन से हमारी आने वाली जनरेशन इनको अगर अडॉप्ट करती है, दैट इज द मतलब एम हम लोगों का, जो मुझे लगता है कि होगा। हम मतलब बच्चे उसको एक्सेप्ट करें, आने वाले समय के जो लोग हैं। एंड काफी में एकदम सही बात है, सिविलाइजेशन एकदम एंशिएंट टाइम से, वैदिक टाइम से होती आई है, वो सब पानी के आसपास ही, नदी पानी, क्योंकि हम कहते हैं ना पानी के पास ही जीवन है। तो वाटर के बिना तो बिल्कुल कोई, हमारे पानी के बिना तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि पानी की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है और कितना पॉजिटिव रोल है to keep us healthy, to keep us alive. So it was really very nice to listen to you. It was really my pleasure, and I hope कि हमारे जितने भी friends हैं सबने बहुत enjoy किया होगा ये session, and I personally loved it. Now I personally congratulate you on behalf of my PEFI family. Now I would like to invite Sambat sir for the concluding remarks and vote of thanks.
And for Sambat sir, I would like to say that Sambat sir is, founder. He's the founder of this. संबत सर मे बी आपका बैकग्राउंड में एक और वीडियो चल रहा है, आप उसको एक बार क्लोज करिए। शायद डेस्कटॉप पे फेसबुक लाइव भी चल रहा है, शायद उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। आप इसके एक बार ऑफ कर दीजिए। Sambat sir is the founder of SAP ESS and also president of Apprentice and Coverstudies. So I would like to invite, Sambat sir for the concluding remarks. Hello. And word of thanks. Sir, the screen is yours now. Please go ahead. मैं बंद कर दिया। Okay. Yes, Sambat sir, the screen is yours now. You can Hello. go ahead. Yes. Sambat sir, am I audible? Hello. Tarun sir, please check. Sambat sir, please unmute yourself. Yes. Sir, your concluding remarks, sir. Yes, sir. The screen is yours. Go ahead. Are you hearing? Yes, yes, you are audible, sir. You are clearly audible. Some problem in sound. Okay. Are you hearing? Yes, sir. You are audible. We can hear you. Are you getting now? Yes, sir. Now you are getting? Yes, sir. We are getting you. Hello? We can clearly hear you. Yes, sir. You are loud and clear, sir. Please go ahead. Are you hearing? Yes, sir. You are loud and clear. Are you getting now? Hello. Friends, put your queries in the comment section for the, for whatever the topics you want to like us to share it with you with the experts like these. So please share your suggestions, valuable suggestions in the comment section. I am ready. So there are yes, sir. Sambat sir. Hello. Sambat sir, you are clearly audible. Can I talk now? Yes, sir. Okay. I will start now. Yes, sir. Go ahead. Okay, madam. Nandini, meanwhile, Okay. It's a wonderful session. Yeah, I am audible. yes. Yes, sir. You are clearly am audible. Just go ahead. Yes, sir. Yes. Headquarters, are you audible? Sambat sir, can you hear me? Hello. Sir, can you hear me? Can I start now? Yes, sir. You can start. Okay. Okay, I am starting. From your side, a message. Wonderful presentation. Yeah, I'm not hearing. I'm hearing. Hello. Yes, sir. You are audible. Hello. Sambat sir, can you hear me? Hello. Hello. Madam, hearing? Yes, yes. You're audible, sir. You're clear and audible. Okay. Please go ahead. It's a wonderful presentation by Dr. Abida Verma Sardar, Assistant Professor, Banaras Hindu University, Department of Civil Education. It's a great, one of the important in sports civil education, that's swimming and aqua. About this area, there's a science about swimming, science about aqua is been
presented in a wonderful manner. And it was a wonderful presentation. And this presentation was well prepared. I've been appreciating cross-section overall observation. Madam presented and his own experience. What was the swimming world and what is the Indian sports, particularly looking into swimming science for kids and from a boy, born a child and any age group, even an athlete on any age group. It's a wonderful a component which will help the nation go with a great fitness and great idea about India and Physical Education Foundation of India. And overall, we can see that observation. She has presented a wonderful experience by her own and the rest of the world. It shows the capability and content about science. And it is basically a man should, the world is, more than 65% water is here and there. And we live with water. And how we know how we have to behave with water, go with water and live with water. That is very, very important. So this overall presentation by the man is really fantastic, well prepared and well experienced. This is an eye-opener for PEFI and this sports fraternity, particularly physical education in schools, college, university. And beyond that, it is a curing medicine. It is a helping medicine for a injured person in a relaxation manner. And when in off season, how we have to take this swimming in aqua into a real man to a fit and preparing for a competitive sports. It's a like I am looking into these three areas, particularly yoga, swimming, and gymnastics is a basic for a sportsman. So this swimming is getting a great opportunity, make fit by this water science and swimming science and aqua science into another level. So I really congratulate the presenter as prepared in any like I used to say, sports medicine. Sports medicine is a sports science, sports engineering, sports medicine, and every sport is connected with these all the three components. So I really appreciate this preparation, and I like to conclude my this concluding remark. Now, are you audible now? Are you hearing? Yes, sir. Yes, sir, continue. Yes, sir, continue. Are you hearing? Okay. And I like to conclude this. Are you hearing? Okay, that is what I want to conclude my concluding my remark. Now, can I go for vote of thanks? Yes, sir. Please go ahead. I am hearing my side audio is in difficult. Are you getting now? Yes, sir. You're clearly audible. You just go ahead. Shall I go for vote of thanks? Yes, sir. Can I go for vote of thanks? Okay. And I appreciate. I wish to thank all the members. Particularly, I am connected with those officially from Tamil Nadu chapter, and I really appreciate this. PEFI is doing wonderful thing, making this all India unite under one roof
and particularly physical education people not having any sort of organization or forum. Now the Physical Education Foundation of India is doing a wonderful things, connecting all states, all physical and sports people. Now it is means it is a basic need like Indian Medical Association and other professional forums. So we need a sportsman, physical education people need under one roof, and we are making wonderful things. We are connecting all schools, all colleges, all universities, and all sports body under one roof. And it is really appreciable to the FIFI body, headquarters, secretariat, and all these organizations during COVID pandemic 1.0 and 2.0 preparation and presentation. It shows the world the stuff of our young staffs. And I mean, there's a technical presentation of a teachers in a various level. It shows that India is nowhere inferior to anybody, and it is a wonderful opportunity. And I appreciate really top to bottom every member, particularly the Piyush Jain, who is an young, energetic general secretary, and all the professors and vice chancellors and teachers and sports persons. I like to share that the Tamil Nadu we are guiding by, the Olympian and Padma Shri Charles Borromeo, who is had a wonderful experience in Tata Sports, Jamshedpur, is guiding us how to this Tamil Nadu into competitively better in winning. And really, I thank this team who made this effort to bring me as a concluding remark and an official person in the event. I really thank particularly Piyush Jain, Joint Secretary, Joint Secretary Tarun Smaji, hello, and Madam Anita Pandeji, and Geeta Madam, and all the members. You are doing wonderful things. Please keep this energy and more this united India. And really thank you. Hats off, PEFI and India Physical Education and Sports. Thank you for the opportunity. Wonderful. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you so much, sir, for your concluding remarks. It was really, privileged and, very honored that for your words. So, friends, so this was our today's session. And I guess we all have a lot of things to take away from the session. And mostly what I'm taking away is the women empowerment. And that is one of the best way, that is Aqua Yoga, which is very much our ancient, you can say, heritage. But we are, just focusing on the Western countries. But still, if we just, grasp this opportunities to get this Aqua Yoga, it will be very good for us. So once again, I would like to thank everyone on behalf of PEFI family that who took us our time, your valuable time for us to view us, to be with us, to give your suggestions and your valuable feedbacks. It was my pleasure to host this event and to be a part of this event. All of you have a great day. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Friends, keep sharing your feedback when you schedule. My pleasure to host this event and be a part of this event. All of you have a great day. Thank you so much. Thank you, ma'am. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, madam.